1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमन्स 16 चैप्टर 1 वर्स से 27 वर्स, सैम्स 102 103 चैप्टर, रोमियो की पत्री 16 अध्याय 1 वचन से 27 वचन और भजन संहिता 102 से 103 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कम होली स्पिरिट, आपके अलावा हमको ये वचन कोई नहीं सिखा सकता है। हम में आप समा जाइए पवित्र आत्मा, और हमारी समझ के अंदर हमको ये वचनों को लेने के लिए सहायता कीजिए। वी लव यू होली स्पिरिट। तू सच्चाई का आत्मा है। हर झूठ, हर धोखा, हर एक गलत विश्वास आज इन वचनों से टकराए और चकनाचूर हो जाए। खुदा, सच्चाई ऊंची कर हमारे जीवन में, हमारे कैरेक्टर में। बहुत कुछ परमेश्वर हमें देना चाहता है। इन वचनों से हम उसे पहचानने लगे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम पढ़ेंगे रोमन्स 16 चैप्टर 1 वर्स से 27 वर्स। Paul sendeth salvations to many. First verse say, I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea. We love you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Abba Father. We thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आप बढ़े और हम घटे पिता। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। और एक बार शुरू करेंगे चैप्टर 16 से। Paul sendeth salutations to many. First verse, I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea, that ye receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you. For she hath been a succorer of many, and of myself also. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruits of Achaia unto Christ. Greet Mary, who bestowed much labor on us. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. Greet Amplias, my beloved in the Lord. Salute Urbain, our helper in Christ, and Stachys, my beloved. Salute Apelles, approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Salute Tryphena and Tryphosa, who labor in the Lord. Salute the beloved Persis, which labored much in the Lord. Salute Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. Salute Asyncritus, Phlegon, Hermos,
Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them. Salute Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympus, and all the saints which are with them. Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Now beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Timotheus, my work fellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you. I, Tertius, who wrote this epistle, salute you to the Lord. Salute you in the Lord. Gaius, mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus, the chamberlain of the city, saluteth you, and Quaertus, a brother. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen. Written to the Romans from Corinthus and sent by Phoebe, servant of the church at Cenchrea. हम हिंदी में इसी अध्याय को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 1 वचन से 27 वचन पढ़ेंगे। व्यक्तिगत अभिवादन 16 अध्याय पहले वचन से। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया के कलीसिया के सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाओं भी उनका धन्यवाद करती है। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रेनिकोस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी है और मुझसे पहले मसीह हुए थे, नमस्कार। अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानोस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तखुस को, नमस्कार। अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तोबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के जो लोग प्रभु में है उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती है, नमस्कार। प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। असुंक्रितुस और
फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हीमांस और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलोलोगोस और यूलिया और नेरियोस और उसकी बहन और उलम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। आखिरी निर्देश 17 वचन से आगे पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे सहकर्मी तिमोथियोस का और मेरे कुटुंबियों लुकियोस और यासोन और सोसिपन्नोस का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतुयोस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयुस जो मेरी और कलेसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। परमेश्वर की स्तुति। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सैम्स 102 और 103 पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Psalms 102. The prophet makes a grievous complaint. He takes comfort in the eternity and mercy of God. A prayer of the afflicted when he is overwhelmed and poureth out his complaint before the Lord. First verse से पढ़ेंगे। Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Incline thine ear unto me in the day when I call, answer me speedily. For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth. My heart is smitten and withered like grass, so that I forget to eat my bread. By reason of the voice of my groaning, my bones cleave to my skin. I am like a pelican of the wilderness. I am like an owl of the desert. I watch and am as a sparrow alone upon the housetop. Mine enemies reproach me all the day, and they that are mad against me are sworn against me. For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping, because of thine indignation and thy wrath, for thou hast lifted me up and cast me down. My days are like a shadow that declineth, and I am withered like grass. But thou, O Lord, shalt endure forever, and thy remembrance unto all generations. Thou shalt arise and have mercy upon Zion for the time to favor her. Yea, the set time is come. For thy servants take pleasure in her stones, and favor the dust thereof. So the heathen shall fear the name of the Lord, and all the kings of the earth thy glory. When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer. This shall be written for the generation to come, and the people which shall be created shall praise the Lord.
For he hath looked down from the height of this his sanctuary. From heaven did the Lord behold the earth, to hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death, to declare the name of the Lord in Zion, and his praise in Jerusalem. When the people are gathered together and the kingdoms to serve the Lord, he weakened my strength in the way, he shortened my days. I said, O my God, take me not away in the midst of my days. Thy years are throughout all generations. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall have no end. The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee. Psalm 103. Exhortation to bless God for his mercy, a psalm of David. First verse. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagle is. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, to such as keep his covenant, and to those that remember his commandments, to do them. The Lord hath prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. Bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Bless ye the Lord, all ye his hosts, ye ministers of his that do his pleasure. Bless the Lord, all his works in all places, in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 अध्याय और 103 अध्याय BSI बाइबल में से। संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। दीन जन की उस समय की प्रार्थना जब वह दुख का मारा अपने शोक की बातें यहोवा के सामने खोलकर कहता है। 102 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है
और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गोराई के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। परमेश्वर का प्रेम। दाऊद का भजन 103 अध्याय पहले वचन से। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है।
मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा के सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 16 चैप्टर 13 वर्स से 18 वर्स। रूथ 3 चैप्टर 4 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन से 18 वचन। रूथ की पुस्तक 3 अध्याय 4 अध्याय। हमने 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को, 2 ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान को अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ना है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता कर रहा होगा, हमारे साथ परमेश्वर के वचनों को हमारे अंदर भेद रहस्य खोल कर दे रहा होता है, उस समय हमने उन नोट्स को लिख लेना है। परमेश्वर हमको जो बातें हमारे इस व्यक्तिगत समय में बाइबल रीडिंग करने के वक्त में देगा, हमने उसको नोट्स बनाकर लिखना है, और उसमें जो हमने प्राप्त किया है उसको हमने रोज के जीवन में चलना है। ऐसा करते हुए जब हम 2 साल के अंत में पहुंचेंगे, परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने राज्य के उपयोग में लेता है, और ये होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह भी दिया है। हमने निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।